Morning, everyone. And this is BCom batch, and we are conducting the class from BCom professional batch of Aryabhat Knowledge University. And our topic, which we are covering in this session, is Who Moved My Cheese? And in the last two classes, we have covered some points. We have covered what exactly the metaphor is, who are the characters, and we have also covered the plot of this particular novel. That what is the plot and what is the purpose of this novel. And we have already started this novel, and we have covered some of the pages. And in this class, we would like to discuss the issues or the questions of the students if they have encountered while going ahead with the things. In the last class, I also gave you three questions. I expect one of the student to respond. What were the questions? There were three questions. One of you can respond. Can you please respond? Sir, So question number first one, question what is, is your Yes, yes, yes. First question is Priya. Tell me. what is your opinion about change? We are going to Second, discuss about this question in this class. That what is your opinion about change? And afterwards, what is the second question? how comfortable are you with the change? All right. How comfortable are you Um, with the change? That is the second question which we will be picking up. And then Third question is, what kind of changes do you find in mindset of hem, haw, and sniff and scurry? that is fine. So there are four characters, and what kind of changes were there in the mindset? Were they of same mindset or different mindset? So I'll be covering all these things in this particular session, and afterwards we will continue our Am I audible? Hello. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. Okay. Fine. In between, we lost the connection. बीच में connection कट गया था, but automatically I rejoined it. Fine. So we'll be covering the questions, और उसके बाद हम लोग topic को आगे लेकर के cover करेंगे और आगे की चीजें cover करेंगे. So what is the first question? Any student can respond. sir, what is your opinion about change? So why don't you only respond? तुम्ही क्यों नहीं बताते? What is your opinion about change? Change यानी बदलाव के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? What is your opinion about it? Sir, my opinion about change is that the change is inevitable and occurs naturally over time. Very good. It occurs. Yes, sir. Yeah. Continue. It occurs anytime, any moment. We have to get prepared for the change now, not to worry about the change that happens and what to do. True. People have to go through the change, not the change go through us. Okay, that's a very good point which the boy has raised. What is the name? Ashutosh Ranjan. Ashutosh. So whenever you answer, just tell your name also, that my name is Ashutosh Ranjan, और उसके बाद अपना answer बोलना. So he has said a very important point. He has made a very important point that we have to change. People should change. Change will not happen according to us. And when it happens, then it is known as planning. फिर हम उसको planning कहते हैं. Yes or no? So when the change doesn't happen according to us, then we have to remain prepared in that condition. So change is inevitable. He has used the term inevitable, which is certain, which is bound to happen. जिसको टाला नहीं जा सकता, जो होना ही होना है. So one thing Ashutosh is insisting and the point is that change is inevitable, and this will happen, and it will keep on happening. That's a very good point. Very good. And the second person who would like to answer it? Anyone? Anyone who would like to answer it? Ashutosh, name somebody else in your class who will answer it. Priya. So change can be positive or negative. It depends upon them. Or we have to change. We have to change ourselves according to the situation. That is fine. Regarding. And the next. Sometimes change may be good for us, or sometimes it's give the negative effects also. But it all depends upon the interpretation of the people, that whether it is negative or whether it is positive, depending upon the people's mindset. Yes, no? Yes, sir. Clear? That is fine. Correct. Now the next, somebody else. What kind of change do you find in the mindset of him, Hoy, Sniff and Scurry, sir? Yes. Respond.
So the kind Respond. of changes that comes in the mindset of him and his him and Haw, that is Mhm. after getting the cheese in the cheese station C, him and Mhm. Haw found himself relaxed and in a comfort zone. themselves. बिल्कुल सही है. Mhm. And Correct. they also on the cheese that it They is also mine, and they also on this cheese that dependent. is Yes. They felt that cheese is mine. They realized, they thought that this cheese is mine. They started feeling that they were entitled to that cheese. Yes, no? yes, sir. That is what the author wanted to say. Once it happened, once they found the cheese, they felt they are entitled to that change. सही है ना? Yes, sir. But Very Sniff good. and Scurry continued their routine in going their maze and for finding the cheese, but and also get ready for the changes that comes in the way of reaching the destination. That is fine. That is fine. That is correct. Somebody else, if would like to answer. Somebody else. What is the third question? What kind of changes do you find in the mindset of the people? What kind of changes do you find in the mindset of the people? Tell me. Do you find Abhijit, any Priya, kind of changes anyone? in the mindset of the people? Other people are not responding. Roll number 10 to 15. One of you respond. Roll number 10. Who is this? Roll number 1. Who is this? If I'm audible, respond. Roll number 2. 3. 4. ये सब लोग एब्सेंट हैं? Present, 5. sir. प्रेजेंट है तो आप लोग रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सारे बच्चे का माइक्रोफोन का क्या स्टेटस है? कोई बताएगा? माइक्रोफोन म्यूट है, क्या है? सर ऑटोमेटिक अपने ये सब म्यूट रखा हुआ है. Sir, अपने सब से कुछ म्यूट से रखा हुआ है. कर अच्छा रखे हैं. ठीक है. Yes, sir, सब ठीक है, ठीक है. नहीं तो अपना अपना खोलिए और मेरे को जवाब दीजिए. आई विल नॉट एक्सेप्ट इट. मैं आपको सीधा अटेंडेंस एब्सेंट करा दूंगा. जब मैं पूछ रहा हूँ मेरे को क्विक रिस्पांस चाहिए. एंड दिस इज बीइंग रिकॉर्डेड. डू नॉट टाइम पास. काइंड ऑफ एटीट्यूड विल डू. चलिए. रोल नंबर 1 कौन है? एब्सेंट है. 2 कौन है? एब्सेंट है. 3 कौन है? एब्सेंट है. 4 कौन है? प्रेजेंट है. नहीं, कोई नहीं है. जिसका आवाज नहीं मेरे को आ रहा है वो एब्सेंट है. हेलो सर, रोल नंबर 3 सर. 3 जब बोला था क्यों नहीं रिस्पॉन्ड किया? सर लेट से आवाज पहुंचा सर. लेट से आवाज पहुंची है. तुम्हारी आवाज तो अभी खटाखट पहुंच रही है. सर आपकी लेट से आई है सर. थर्ड क्वेश्चन क्या है बताओ? माइक्रोफोन सब लोग ऑन रखो और कैमरा म्यूट रखो सब लोग. हाँ, क्या है थर्ड क्वेश्चन? रोल नंबर 3 थर्ड क्वेश्चन पढ़ो. इतना देर तो नहीं लगना चाहिए था क्योंकि पहले नहीं लगा था. 3 एब्सेंट ही हम मानेंगे. 4 कौन है? 4 कौन है? रोल नंबर 4. 5. यस सर. ठीक है. 5 तक तो आवाज पहुंच रही है. रोल नंबर 5 प्रेजेंट है. क्या है मेरा थर्ड क्वेश्चन? What kind of change people have in their mindset? ठीक है, ठीक है. ये जो हेम और हॉ हैं और इसमें फर्स्ट टाइप के जो लोग हैं, इनके माइंडसेट में व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस डू यू फाइंड? किस तरह का तुम इनमें बदलाव देखते हो? सबका एक जैसा सोच है, एक जैसी माइंड है, एक जैसी मेंटालिटी है, या इनके में कुछ बदलाव है? They are having change, sir. व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस आर देयर? मोटा मोटी, कट एंड शॉर्ट. They think differently about the different situation and they react also about differently. Very good, very good, very good. What is the name? What is the name? Mrityunjay, sir. Mrityunjay. Fine. That's correct, Mrityunjay. There's a difference between the thinking. I said it in the previous class that people were. अब mic off कर लेना. अब mic off कर लेना. We are having a different kind of situation here now. Now, what exactly I said in the previous class was the situation remains same for the people, but for some people it is challenging, and for some people it is problem, and for some people
it is a very pathetic situation wherein they cannot do anything. That is out of their hand. So they blame the situation, scenario, or the reasons because of which the thing has occurred. So these things are to be taken care of. ये हमको ध्यान रखना है. And that is the difference in the mindset creates all sort of panic or all sort of problems in the life which people are sometimes able to handle or sometimes not able to handle. All right, अभी आप लोगों को मैं अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, किसी का कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर डाउट नहीं भी है तो सभी लोग अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करके रिस्पॉन्ड करिए मेरे को. No, sir. Sir, can I answer, sir? Yes, answer. So, question number first, what is your opinion Yes. about the change? Sir, according to time and circumstances, in the course of maturation and getting some experience, and sometimes view on life and opinion changes because of experience. बिल्कुल सही, And- correct, that is correct. You get a new piece of information also and a bad thing of information also, and Correct, how we correct, accept एकदम the सही है. information, it depends on us also. Very good, बिल्कुल सही, that is perfectly correct. What is your name? Sir, Abhishek Anand, sir. Abhishek, your answer is perfectly right. So, इसी को मैंने summarize किया. This is what I summarized in my statement, that it all depends upon the reaction of the people. Reaction is the result of our thinking. Yes or no? Yes, Imagine sir. a situation. Suppose अभी रूम में जहां तुम बैठे हो, हम बैठे हैं, सांप आ जाए. अब इस सांप को लेके हमारे पास जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम रिएक्ट करेंगे. पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से हमारा क्या मतलब है? एक तो हमारे पास पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है कि ये सांप है, दूसरा हमें पता है खतरनाक है और हम डर जाते हैं कि ये तो जान का खतरा आ गया. लेकिन कोई Yes. और आदमी हो जो सांप को पहचानता हो और वो पहचानता हो कि ये खतरनाक नहीं है, और वो ये पहचानता हो कि ये तो मेरा पालतू सांप है, और वो ये जानता हो कि सांप से मुझे डर नहीं लगता, मैं सांप को हैंडल करना जानता हूं, तो उसका रिएक्शन अलग होगा. ये सुनो. Yes, sir. और ये जो रिएक्शन और माइंडसेट हमारा बनता है, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट इज द कलेक्शन ऑफ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस व्हिच वन गेन्स ड्यूरिंग हिज लाइफ, एजुकेशन व्हिच ही गेट्स, वैल्यूज व्हिच ही इनकलकेट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो हम जो भी माइंडसेट बनाते हैं बाबू, जो नॉलेज हम बनाते हैं, वो नॉलेज हमारे Excuse me, sir. समाज का. हाँ जी, एक सेकंड, इस लाइन को कंप्लीट कर लूं, Yes, इस लाइन को कंप्लीट कर लूं. वो नॉलेज हमारे समाज का, सोसाइटी का, एजुकेशन का नतीजा है. यही वजह है कि जब तुम स्टैंडर्ड 3 में थे तो आज के जैसा नहीं सोचते थे, 12th में थे तो आज के जैसा नहीं सोचते हो, जब तुम आए थे समझ में तब ऐसा नहीं सोचते थे, और 3 साल बाद जब पढ़ के निकलोगे तब तुम कुछ और आदमी होगे, और आज से 5 साल बाद कुछ और आदमी होगे. ये जो तुम बदलते चलोगे बिकॉज ऑफ नॉलेज. कुछ विश्वास तुम बहुत मजबूती से पकड़ते चले जाओगे कि लाइफ में मैं लगातार इसको देखता आ रहा हूं, और कुछ विश्वास हैं जो तुमको बाद में बदल जाएगा कि मुझे लगता था मैं नहीं कर सकता हूं लेकिन अब तो मैं कर सकता हूं. तो ये हमारे रिस्पॉन्स जो होते हैं, ये एजुकेशन, नॉलेज और हमारी लर्निंग पर डिपेंड होते हैं, और इन्हीं विश्वास से हमारा अप्रोच बनता है और उस अप्रोच से हमारा एक्शन निर्धारित होता है. अब कोई स्टूडेंट बीच में क्वेश्चन कर रहा था, अपना नाम बताओ और उसके बाद क्वेश्चन करो. Sir Utkarsh. Sir, हाँ, can I Utkarsh, answer बोलो. the first question? हाँ, sure, why not? This is your forum, Babu. Tell me. So, according to me, change is necessary because people get to know their potential against what they can think or any work they can do. Beautiful, Utkarsh. Correct. Because he's saying it lets the people know about their potentiality. He's referring to a very certain point. आज तक तुमने जो नहीं किया, अगर मैं तुमको वो करने को कहूं, then that is a change. और अगर तुम वो करते हो तो तुम अपने पोटेंशियलिटी को नापते हो. पिछले 5 दिनों में तुमने अपनी पोटेंशियलिटी को नाप लिया कि वीडियो पर भी तुम पढ़ाई कर सकते हो. तुमने अपनी इस पोटेंशियलिटी को नाप लिया कि अगर कोई बच्चा चाहता हो कि मुझे कुछ सीखना है और उसके जो मुझे बैंगलोर जाना पड़ेगा क्योंकि वहां पे उसके टीचर रहते हैं और मैं बैंगलोर जाना या बॉम्बे में रहना अफोर्ड नहीं कर सकता हूं, तो आज उस बच्चे को समझ में आ गया होगा कि दुनिया उसके मोबाइल में आ गई है, उसके पाम में है, वो दुनिया में जिससे चाहे उससे कनेक्ट हो सकता है. यस और नो? Yes, sir. और Yes, sir. ये जो न्यू लर्निंग है, ये तुमको नया कॉन्फिडेंस देता है. तो चेंज, अच्छा, ये तो सारी पॉजिटिव बातों की हम बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ केसेस में चेंज नेगेटिव भी होता है. फॉर एग्जाम्पल, अभी लॉट ऑफ पीपल माइग्रेटेड, दे लेफ्ट देयर डिफरेंट स्टेट्स वेयर दे वर वर्किंग एंड दे वर फ्रॉम बिहार. हमारे जो राज्य के अपने लोग थे,
अब इन लोगों को तुम देखो, एकाएक इनकी नौकरी छूट गई, इनके पूरे परिवार के साथ। कभी तुमने सोचा था कि दिल्ली से पटना तक के लिए लोग पैदल निकल पड़ेंगे? अपने बच्चे को साइकिल पर रख करके, अपने बच्चे को कंधे पर रख के पैदल चलते हुए कभी सोचा था ऐसा? No, No. sir. No, sir. तो चेंज के लिए ये लोग तैयार थे, इन्होंने देख लिया कि जो होगा किया जाएगा। चेंज, चैलेंज को लेने के लिए ये तैयार थे। अब तुम सोचो कि तुम्हारे लिए कोई भी काम असंभव नहीं है बाबू। हम उसी बिहार में रहते हैं जहां पर माउंटेन मैन माझी ने पहाड़ को तोड़ के अकेले रास्ता बना दिया। अब इससे ज्यादा भारी काम दुनिया में कोई नहीं हो सकता, और असंभव काम भी नहीं हो सकता, लेकिन उस अकेले आदमी ने कर लिया, जो तुम्हारे जैसा वेल एजुकेटेड नहीं था, लेकिन उसने इसको ठान लिया। 1000 किलोमीटर दिल्ली से चल करके आने वाले लोग भी बिहार के ही हैं, लेबर ही हैं, बगैर किसी सुविधा के, अपने बच्चों को कंधे पर रखकर आने वाले। चेंज आपको अपनी पोटेंशियलिटी को चैलेंज करने की चुनौती देता है, और एक बार अगर आपने वो चैलेंज ले लिया तो उसके बाद बाबू तुमको कोई रोक नहीं सकता, फिर इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। अच्छा आंसर था उत्कर्ष तुम्हारा, दैट वाज अ वेरी गुड पॉइंट व्हिच यू रेज्ड। एनीबॉडी एल्स हु वांट्स टू कम अप? Thank you, sir. अभिजीत प्रसाद, क्वेश्चन है सर, सेकंड हाँ बोल नंबर। बाबू अभिजीत, हाँ बोलो ना। हाउ कंफर्टेबल आर यू विद द चेंज? Now this was a direct question. This is in fact a direct question. How comfortable are you with change? तुम कितने कंफर्टेबल हो चेंज के साथ? इसका आंसर तुम देना चाहते हो शायद, राइट? हमको आंसर नहीं पता है। आंसर नहीं पता है, अच्छा। ये सवाल मैं तुमसे पूछ रहा हूँ अभिजीत कि अगर तुम्हारी जिंदगी में इफ देयर अ काइंड ऑफ चेंज हैपेंस इन योर लाइफ, हो सकता है वो अनकंफर्टेबल चेंज तुम्हारे लिए हो, तुम उसके साथ कितना कंफर्टेबल हो? ये मैं तुमको चैलेंज दे रहा हूँ कि आज तुम एक ऐसे घर में रह रहे हो जहां बिजली बत्ती सब कुछ है, केवल तुम लॉकडाउन के नाम पर घर में बंद हो। सपोज करो कि कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसके बारे में तुम बहुत ही अनकंफर्टेबल हो कि बिजली भी नहीं, बत्ती भी नहीं, इंटरनेट भी नहीं, कुछ नहीं, और ऐसी स्थिति आई थी। पटना के राजेंद्र नगर में लोगों के घरों में पानी घुस गया था और लोग 15 दिन तक रहने को मजबूर थे। अब ये भी एक बदलाव है, बुरी स्थिति है, बदलाव है, लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूं कि अगर तुम्हारी जिंदगी में, और इसका आंसर केवल तुम ही दोगे और तुम्हें सोचना पड़ेगा, हो सकता है आज तक तुमने इसको कभी पॉन्डर नहीं किया, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई बदलाव आ जाए तो उस बदलाव को लेकर के तुम कितना कंफर्टेबल हो? उस बदलाव का तुम विरोध करोगे? बदलाव जब ऐसा सिचुएशन आएगा जिसको कि तुम नहीं चाहते हो तुम्हारी लाइफ में आए, क्या तुम उस पर रिपेंट करोगे, सर पीटोगे, बैठे रहोगे कि मेरे साथ क्यों हुआ, मेरा नसीब खराब है? क्या करोगे? इस क्वेश्चन का जवाब तुम ही को देना है। नाउ टेल मी। इसी को लेके आगे बढ़ेंगे, चेंज को ही। यानी बदलाव को हम एक्सेप्ट करेंगे। यस नो? यस सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि कई एक लोग हैं जो टाइम पास करने के लिए भी हो सकता है इस तरह से मजाक कर रहे हो कि घर में बंद हो गए हैं, कुछ करने को नहीं है, क्या करें, बात तब आता है। इसी में कुछ लोगों ने कंस्ट्रक्टिव काम भी कर लिया। समझ के सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करने लग गए, सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ये हमने इस समय का कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल कर लिया। यस नो? यस सर। हो सकता है कि हम तुम लोगों को ऑनलाइन नहीं भी पढ़ा पाते, कोई वैसी व्यवस्था हो सकता है नहीं होती, ये तो जूम ऐप है और हम लोग इस्तेमाल कर पा रहे हैं और बच्चे कर रहे हैं। वैसी कंडीशन में मान लिया कॉलेज भी नहीं पढ़ा पाता तुमको, मान लिया घर से बाहर भी नहीं निकल पाते, तो तुम्हारे पास दो स्थिति होती। पहला, सर पीटना और रोज दोष देना कि ये समय कब खत्म होगा, और दूसरा, जब तुमने मान लिया कि हम कुछ कर नहीं सकते, हमें सड़क पर निकलना है नहीं, हमारी जान की सुरक्षा उसमें है नहीं, तो अब मैं इस वक्त में प्रोडक्टिव क्या करूं? मैं कुछ नया कर लूं, मैं कुछ नया सीख लूं। यानी उस बुरे वक्त को या तो आप रोते रोते तकलीफ में भाग्य को दोष देते हुए बिता सकते हैं, या उस बुरे वक्त को आप ये मान ले कि अब यही है तो इसी को देखेंगे। अब गाड़ी से जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, अब जो है वो जो बच गया उसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। जो बच गया है उसको लेके हम पॉजिटिव रहें और चैलेंजेस के लिए तैयार रहें। आई होप कि इट इज क्लियर टू यू। यस सर, थैंक यू। ठीक है, एनीबॉडी एल्स हु वांट्स टू से एनीथिंग? Sir, I would like to answer this question about what I think. हाँ बोल बाबू, that, बोल, टेल मी। if you are having determination about the change, that means you are comfortable about that change. And if you are having a lack of determination, it means you feel yourself uncomfortable for that change. बहुत बढ़िया। सी आई विल टेल यू टू थिंग्स इन आवर लाइफ। देयर आर टू थिंग्स। हमारी लाइफ में दो चीजें होती है, और वो चीज होती है कंफर्ट, जिसको हम कहते हैं, और डिटर्मिनेशन। कंफर्ट और डिटर्मिनेशन वर्ड को थोड़ा समझ लेना मैं क्या कहता हूं। इफ you are comfortable with something, so under the pressure you will leave it, and if it is your determination, तो जब प्रेशर पड़ेगा
तो वो डिटर्मिनेशन और स्ट्रांग हो जाएगा। इस बात को तुम समझना। तुम्हें कॉलेज आना है और कॉलेज आने को तुम कंफर्ट मानते हो कि सब चीज ठीक रहेगी, ऑटो चलेगा, गाड़ी चलेगी, मेरा मोटरसाइकिल ठीक रहेगा तो मैं आऊंगा। ये तुम्हारा आना, कॉलेज आना जाना या कहीं जाना तुम्हारे लिए कंफर्ट का मामला है। तो जब तक मामला कंफर्टेबल का रहेगा तब तक तुम आओगे। तुम्हारे पास गाड़ी है आओगे, मोटरसाइकिल है आओगे, ऑटो चल रही है आओगे, समय ठीक है आओगे, मौसम अच्छा है आओगे। कंफर्ट का मामला है। और कंफर्ट हमेशा प्रेशर में खत्म हो जाता है। स्ट्राइक हो गई, पढ़ाई को लेकर दिक्कत है, गाड़ी आज खराब हो गई, ऑटो नहीं चल रहा है, गर्मी ज्यादा हो रही है, बारिश का मौसम है, तुरंत तुम छोड़ दोगे, ओह अब इसको कर पाना कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन डिटर्मिनेशन के साथ क्या बात होती है कि जितना ज्यादा प्रेशर पड़ता है, डिटर्मिनेशन उतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अगर तुमने डिटर्मिनेशन कर लिया है कि मैं तो कॉलेज में आऊंगा, मेरा 100% अटेंडेंस होना है, अब कितने भी प्रेशर तुम पर पड़ जाए, वो हर प्रेशर तुम्हारे डिटर्मिनेशन को और मजबूत कर देगा। कार नहीं है, मोटरसाइकिल से जाऊंगा, मोटरसाइकिल नहीं है, ऑटो से जाऊंगा, ये डिटर्मिनेशन तुम्हारा मजबूत हो रहा है। ऑटो नहीं है, साइकिल से जाऊंगा, साइकिल भी नहीं है, पैदल जाऊंगा, बारिश हो रही है, छाता लेके जाऊंगा, गर्मी पड़ रही है, छाता लेके जाऊंगा, परवाह नहीं है, लेकिन जाऊंगा। तो प्रेशर जो है वो तुम्हारे लिए एक बहुत फ्रूटफुल चीज हो सकती है अगर लाइफ में तुमने उसे डिटर्मिनेशन बना रखा है। तो अगर कंफर्ट बना रखा है तब नहीं हो पाएगा। कंफर्ट चाहता है कि सारी सुविधाएं मिलेंगी, मुझे मजा आता रहेगा, तभी मैं ये काम करूंगा। और डिटर्मिनेशन का मतलब होता है चाहे सुविधाएं मिले चाहे न मिले, मुझे कोई हिला नहीं सकता, मैं तो इस काम को करके रहूंगा। तो ये जो हमारी सोच है, तुम में से कई एक लोग ऐसे होंगे जो जानते होंगे अपने कुछ एक दोस्तों को जिन्होंने जिम वगैरह ज्वाइन किया है। शायद तुम खुद हो या कोई और लोग हो। ऐसे लोगों में तुम देखोगे कि शुरुआत में वो लोग जिम जाते हैं या कुछ अच्छी चीजों को करते हैं और जिम्नास्ट वगैरह की क्लासेस को ज्वाइन कर लिया, कुछ अच्छी चीजों को किया, लेकिन कुछ दिनों में प्रेशर पड़ने लगा तो फिर छोड़ दिया कि अब मुझसे कंटिन्यूएशन नहीं होगा। ये कंफर्ट है और यही डिटर्मिनेशन होगा। तो ये जो लोग होते हैं, ये लोग उस काम को करेंगे डिस्पाइट ऑफ ऑल। तुमको स्टोरियां क्यों बताई जाती है कि हमारी जो बेस्ट एथलीट रही, जिसने इनाम जीता, वो नंगे पांव दौड़ती थी, उसको कोई रिसोर्सेज नहीं मिले, उसके पिताजी गरीब थे और वो बच्ची आगे बढ़ती गई। और ऐसे कई एक कहानियां हैं कि जिनको तमाम चैलेंजेस आए, लेकिन वो जो चैलेंज था, वो प्रेशर था, वो प्रेशर उनको कमजोर नहीं किया क्योंकि उन्होंने उसे डिटर्मिनेशन बना रखा था। हर प्रेशर ने उन्हें और मजबूत किया। आई होप कि ये मैसेज आप लोगों को क्लियर होगा। सभी लोग ठीक है? Yes, और sir. कोई पॉइंट जो आप लोग, Yes, sir. ठीक है फाइन, और कोई पॉइंट जो आप लोग पूछना चाह रहे हैं, रिस्पॉन्ड करिए या कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, नहीं तो फिर मैं मॉड्यूल को लेकर के आगे बढ़ूंगा। तुम लोग को लिबर्टी है, कुछ पूछना चाह रहे हो तो पूछो। कोई क्वेश्चन? नो सर। आगे बढ़े हम लोग, सभी लोग रिस्पॉन्ड करिए एक साथ। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैं अपना स्क्रीन तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। ऑलराइट, और अब मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को आगे लेके चल रहा हूँ। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में इसको पढ़ा था, हु मूव्ड माय चीज को। आप लोग के पास ऑलरेडी ये होगा। इसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में डिसाइड किया था, जो हम लोग कहानी को कवर करते हुए आए थे, that we found a different kind of mindset among all these people. Yes, no? And one of them, उन्होंने एक अलग अलग रूटीन फॉलो कर लिया था, which we had discussed in our previous class. कि they used to come there और उसके बाद a different routine set in the in their life, जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इसने फिर करिए continue to wake up each early, और बाद में एक different routine set in हो गया। ये हम लोग कवर कर चुके हैं, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा everyone। Yes, sir. Okay, ये भी हम लोगों ने कवर कर लिया था। They had no idea where the cheese came from or who put it there. They just assumed it would be there. अब इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। Now we discussed that they were becoming very comfortable. देर से उठना, आराम से चल के आना उनके comfort level को शो कर रहा था। और इसी comfort में हमने one fine day he said, "That's great. There's enough cheese here to last us forever." The little people felt happy and successful and thought they were now secure. ये सिक्योरिटी की फीलिंग उनको आ गई। सिक्योरिटी की फीलिंग आपको कब आती है? When you are sure about the future. Sure का मतलब क्या हुआ? You don't expect that it will change. Yes, no? Yes, sir. Loud and clear. Yes, sir. सीमा पर किसी जवान की अगर ड्यूटी लगी होगी तो क्या वो वहां पर सो जाते होंगे दिन में या रात में? No, sir. नो सर, नेवर। नहीं, वो every time they are in the alert state of mind. All right, they are always alert. वो comfortable नहीं रह सकते हैं। Now,
It wasn't long before, ज़्यादा वक्त नहीं लगा, when him and her regarded the cheese they found at cheese station C as their cheese. Now, ये जो चीज उनको मिला था जिसके बारे में they were not aware of that who put it that very cheese या where exactly it came from, इस चीज को उन्होंने क्या मानना शुरू कर दिया? They regarded this cheese as their own cheese. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन आप लोग कॉपी में लिख लें, छोटा सा लाइन. What do you understand by the statement? By the statement. What do you understand by the statement? They regarded, मैं रिपीट कर रहा हूं, they regarded the cheese they found at cheese station C, the cheese they found at cheese station C as their own cheese, as their own cheese. इसमें their own को inverted comma में डाल देना, इस पर ज्यादा स्ट्रेस में कर रहा हूं. क्वेश्चन का मतलब है कि जो चीज उन्हें मिला था, जिसके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि they did not know, they had no idea where the cheese came from or who put it there. They just assumed that it would be there. इस चीज के बारे में उन्होंने क्या रिगार्ड करना शुरू कर दिया? They regarded this cheese as their own cheese. ठीक है ना? What exactly does it show? अगले क्लास में आप इसका जवाब मुझे देंगे, अभी मैं केवल एक्सप्लेन कर रहा हूं, जवाब मैं आपसे अगली क्लास में लूंगा. They regarded this cheese as their own cheese means they felt entitled to that cheese. Entitled यानी हक होना. उन्होंने रियलाइज करना शुरू कर दिया कि ये जो चीज है, इस चीज पर मेरा हक है. अब ये सवाल को उन्होंने सोचना ही बंद कर दिया कि चीज कहां से आया, क्यों आया, जो कि एक जेन्युइन सवाल था. अगर क्वेश्चनेटिव होना था, अगर क्वेश्चनिंग होना था, तो इस पर्टिकुलर सवाल को जरूर पूछा जाना चाहिए था कि आखिर आया कहां से. जहां से आया वहीं चला भी जाएगा, जिसने रखा है वही हटा भी देगा, लेकिन इन सब चीजों की तरफ उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं था. They regarded this cheese there as their own cheese. It shows that they were in the extreme level of comfort. Anyways, it was such a large store of cheese that they eventually moved their homes to be closer to it and built a social life around it. इतना बड़ा था कि वो लोग अपना घर वर भी उधर ही शिफ्ट कर लिए और उसके आजू बाजू उनकी सोशल, सामाजिक दुनिया बन गई. फॉर एग्जाम्पल, हम और तुम जहां भी जाते हैं एज एन इंडिविजुअल जाते हैं, लेकिन जब हम कंफर्टेबल हो जाते हैं तो लोगों के साथ एक सोशल रिलेशनशिप बिल्डअप कर लेते हैं. हमारे कॉलेज में पूरे बिहार से लोग आकर के पढ़ते हैं और वो पटना के अलग अलग हॉस्टल्स में रहते हैं, जहां पहला दिन उनका नया लाइफ होता है, वो नहीं जानते हैं, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 10-15 दिनों में, महीने 2 महीने में वो लोग एक सोशल लाइफ बिल्ड कर लेते हैं. तुम में से कोई स्टूडेंट है जो पटना के बाहर का है, जो समझ में पड़ता है? Yes, sir. कौन लोगों, कौन लोगों, कहाँ से हो? Yes, sir. आरा से कौन लोग, और नाम बताओ, कहाँ से हो? Sir, विनीत आरा से. विनीत आरा से हो, अच्छा ठीक है. और अभिजीत प्रसाद, खड़गपुर. कहाँ से अभिजीत? कहाँ से? खड़गपुर. खड़गपुर से, अच्छा ठीक है. और मृत्युंजय समस्तीपुर. और सर अर्पित सिवान. अर्पित सिवान से. और सुधीर झारखंड से. सुधीर झारखंड से. तो कुल मिला के और भी कोई है? Sir, उत्कर्ष गोवा से. उत्कर्ष गोवा से. और आशुतोष हाजीपुर से. आशुतोष हाजीपुर से. तो जब हम कहते हैं कि हमारे यहाँ पूरे बिहार से लोग आते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों का बैच लगभग बीकॉम का बैच 22 स्टूडेंट्स का बैच है, और इसमें से इतने लोग बाहर से आए क्योंकि हम लोगों ने लेट से सिमज कॉलेज में एडमिशन शुरू किया था. तुम रियलाइज करोगे कि जब तुम लोग गोवा से आओ या झारखंड से आए हो बाबू, कोई कुछ सिवान से, कुछ तो बगल के हाजीपुर से ही, आरा से भी, तो ये छोटा सा बिहार ही है सिमज का बीकॉम कोर्स. और ये सारे लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन अब तुम लोग अच्छे दोस्त भी बन गए हो. जहां रह रहे होगे वहां भी तुमने एक सोशल लाइफ बिल्डअप कर लिया है. तो ऑथर स्पेंसर जॉनसन यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि they moved their house closer to this particular cheese. जैसे तुम लोगों ने कर लिया. तुम रोज हाजीपुर से नहीं आते हो, तुम रोज गोवा से नहीं आते हो, तुम रोज झारखंड से नहीं आते हो. तुम लोगों ने सिमज को अपना टारगेट माना और इसके आजू बाजू तुम लोगों ने हॉस्टल, लॉज वगैरह ले लिया है जहां रह के तुम पढ़ाई कर रहे हो. इन्होंने भी यही काम किया था. they moved their life, their homes closer to this to make themselves feel more comfortable at home. Him and her decorated the walls with sayings से यहाँ हमारा मतलब है कहावत, and even drew pictures of cheese around them which made them smile. और उन्होंने उसके आजू बाजू चीज की तस्वीर भी बना दी और कुछ sayings यानी कोटेशन लिख दिया. पहला कोटेशन ऑथर ने यहाँ पर
चीज की तस्वीर में हाईलाइट किया है। सभी लोग पढ़ के बताएं व्हाट एग्जैक्टली इज देयर ऑन योर स्क्रीन। क्या पढ़ सकते हैं आप? Having cheese makes you happy. Having cheese makes you Happy. feel happy. हैविंग चीज मेक्स यू हैप्पी या मेक्स यू फील हैप्पी, कैसा भी पढ़ दें, इसमें लिखा है हैविंग चीज मेक्स यू हैप्पी। ये पहला लेसन है। कॉपी में आप लोग इसको भी लिख लेंगे, अगर आपके पास बुक है तो टिक लगा लेंगे, जिस पर हम डिस्कस करेंगे या हम सेशन के दौरान कभी भी पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय हैविंग चीज मेक्स यू हैप्पी। हैविंग चीज, यहाँ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, चीज इज अ मेटाफर व्हिच रिफ्लेक्ट्स, व्हिच रिप्रेजेंट्स what one wishes to achieve or have in his or her life. So having cheese makes you happy. It means the author wants to say that if we wish to achieve something, or we desire to achieve something, we aim to achieve something, and if we are able to achieve that, our goals are met, then we feel happy because we feel we are successful. Having cheese makes you happy का मतलब हुआ कि अगर जीवन में हमारा कोई गोल है, कोई लक्ष्य है, हम कुछ पाना चाहते हैं, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर उस चीज को हम पा लेते हैं, तो उस चीज को पाने से हमें सफलता की फीलिंग होती है, और ये सफलता हमें खुश करती है। तुम में से जो भी लोग हो, कोई पेंटर बनना चाहते हो, कोई डांसर बनना चाहते हो, कोई एक्टर बनना चाहते हो, कोई अपना यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हो, कोई बड़ा काम करना चाहते हो, कोई सीए की फाउंडेशन की तैयारी करना चाहते हो, कोई कुछ करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो ना, ये तमाम बच्चे लोग जो हो, जिस दिन तुम्हारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा तुम बहुत खुश होगे। इनका भी टारगेट पूरा हो गया because they were able to achieve their goal. ये लोग अपना लक्ष्य पा रह सकते थे और लक्ष्य पा चुके थे, पाने में सक्षम थे, and they found such a big pile of cheese that they realized that they can depend upon that, and they over a period of time started to recognize that cheese as their own cheese. So having cheese makes you happy. ये ऑथर ने पहली चीज को हाईलाइट किया है, लेकिन हमने इससे पहले भी कुछ महत्वपूर्ण चीजों को अपने स्तर पे पहचाना है। We have identified some important things which we have discussed. आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करेंगे, अगली क्लास इसके आगे हम शुरू करेंगे। अभी तक जितना हमने डिस्कस किया, पास कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, बिकॉज आवर टाइम पीरियड इज गोइंग टू बी ओवर, और कभी भी कनेक्शन कट सकता है। मैं मैसेज इसमें कुछ दिख रहा है, तो आप लोग कोई कनेक्शन। जितेंद्र सर, आपने अटेंडेंस मार्क कर लिया होगा? हाँ सर, हो गया अटेंडेंस। बढ़िया, ठीक है, चलिए बोलिए आप लोग। No, sir. एनी क्वेश्चन? No, sir. No, sir. ठीक है, अच्छा ठीक है। हम लोग क्लास में, मुझे लग रहा है कि सारे बच्चे तो एब्सेंट नहीं थे, सारे बच्चे मेजॉरिटी में प्रेजेंट रहे, कुछ एक बच्चे एब्सेंट रहे। तो मैं ये भी चाहता हूँ अगली क्लास से कि हम तो सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, कंसीडरिंग ऑल द स्टूडेंट्स। जहां तक हम तुम्हारे बुक में पढ़ चुके हैं, उसमें से भी अगर कोई टॉपिक हो तो तुम लोग बीच क्लास में पूछ सकते हो। जरूरत नहीं है कि तुम इंतजार करोगे कि सर जब वहां पर आइएगा तो मैं पूछूंगा। आप उन चीजों को भी पूछ सकते हैं। कंफ्यूजन? नो सर। No, sir. चलिए, No, sir. ठीक है, तो आज का सेशन हम कंप्लीट करते हैं, और वी आर गोइंग टू वाइंड इट अप। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। ऑलराइट, थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन। Thank you.